Hello everyone, welcome to the channel. So, as you all know that एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है फॉर जून 2023, राइट? And we all, I guess, all of you must have started with your preparation and you all must be in your revision phase. So, in this video, I'll be going to discuss that what should be your strategy, as you can see that half month, or you can say 20 days are left. So what should be the strategy and how should we proceed right now at this point of time? Okay, but before that, just join this telegram group. This is the same old telegram group. The description has been changed a bit, the link has been changed a bit, sorry. It is the old telegram group only. The link is now netdigimento. Okay, t.me/netdigimento. It is the same link as as the previous one. Group wahi hai, it is the same group, just the link has been changed a bit. Okay, and this is the website admin@gatelectures.com. So if you have any doubt, you can write us at this email, or you can also call us 982187610 or 982187610. You can WhatsApp us as well. Okay, so in this video we'll be discussing that what should be our strategy from today, today's time. If we are talking about ki how should we prepare for June 2023. Okay, but before that, as you all know, this is the Android app. You can download this Android app, okay, Digimento Education, from Google Play Store, and then you can look out for the content over here, and you can also visit the website, that is www.digimento.com. Okay, so look out for the spelling and you can visit this website, and there also you can buy the courses if you're planning to. You can buy the test, राइट? वहाँ पे भी डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं, एज यू कैन सी. आई थिंक मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव ऑलरेडी सीन. जस्ट अ बिट, I think, right. So most of you have already seen the different options available on this website. ठीक है, you can go for the test series if you're planning for test series. ठीक है, you can go for test series. अभी time है. You can go for this 15 days का time है आपके पास. आप test series buy कर सकते हो 15 days के लिए. And I'll suggest कि test series buy करो. Practice more and more questions. जितना questions practice करोगे उतना ही ज़्यादा it will help you. So before moving forward, this was the public notice that was released by NTA on 10th May 2023. Opening of the online portal for submission of online application form for UGC NET June 2023. So now you all must have understood this, that the cycle, जो cycle था वो अब सही हो गया है. ठीक है, as you all know that previously there were two papers. One paper was held in June and another one was held in December. ठीक है, तो अब जून वाला पेपर जून में ही हो रहा है. सो यू कैन एक्सपेक्ट कि आपका जो नेक्स्ट एग्जाम होगा वो होगा दिसंबर में. सो द साइकिल दैट वाज नो डिस्टर्ब्ड बिकॉज ऑफ कोविड, नाउ दैट साइकिल इज रिन्यूड. ठीक है, वो साइकिल वापस से शुरू हो गई आपकी. जून का पेपर आपका जून में ही हो रहा है. सो यू कैन एक्सपेक्ट योर नेक्स्ट एग्जाम टू बी इन दिसंबर 2023. ओके, The NTA has been entrusted by UGC with the task of conducting UGC NET, which is a test to determine the eligibility of Indian nationals for assistant professor and junior research fellowship and assistant professor in Indian university and colleges. ठीक है, so 83 subjects में होता है आपका. These are the dates you can see over here. Submission of online application from 10th May से 31st May तक है. तो I'll suggest everyone कि जिसने भी फॉर्म नहीं भरा है, all those who have not filled the form yet, प्लीज फिल दी फॉर्म नाउ. ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिकॉज ऑफ फॉर्म फिलिंग आपका एग्जाम रह जाए. ठीक है, सो डू इट टुडे इटसेल्फ. अगर आपने फॉर्म नहीं फिल किया अभी तक, इफ यू हैव नॉट फिल दी फॉर्म येट, आई सजेस्ट एवरीवन कि प्लीज फिल इट टुडे इटसेल्फ. ठीक है, लास्ट डेट आपकी 31st May है फॉर्म फिल करने की, बट डू नॉट वेट फॉर द लास्ट डेट. लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फी, एज यू ऑल नो कि जो आपकी लास्ट डेट होती है फॉर्म फिल करने की, ऐप सबमिट करने की, उसके एक दिन बाद का टाइम होता है फॉर एग्जामिनेशन फी, दैट इज 1st June 2023. करेक्शन इन द पर्टिकुलर्स इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज 2 to 3 June. सो सिर्फ एक दिन का टाइम दिया है, 2 से 3 जून. ठीक है, 2nd and 3rd June में आप करेक्शंस कर सकते हो अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में. अनाउंसमेंट ऑफ सिटी एग्जाम सेंटर फर्स्ट वीक ऑफ जून. ठीक है, डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड 2nd week of June.
फिर डेट ऑफ एग्जामिनेशन 13 जून से 22 जून. सो वी कैन एक्सपेक्ट कि अभी भी हमारे पास सम वॉट अराउंड 1 मंथ में नहीं बोलूंगी एग्जैक्ट, बट येस अराउंड 25-26 डेज हैं, सफिशिएंट डेज हैं फॉर रिविजन पर्पस. ठीक है. सो एग्जामिनेशन कब से कब तक है आपका? एग्जामिनेशन की डेट क्या आई है? एग्जामिनेशन की डेट आई है आपकी 13th जून. ठीक है, 13th जून 2023 से यू कैन एक्सपेक्ट टिल 22nd जून. सो ठीक है, एग्जाम्स की डेट भी ठीक ही है. ठीक है, अभी वी हैव टाइम. सो वी हैव अराउंड 25-26 डेज, सो वी कैन वर्क ऑन इट. ठीक है. सेंटर, डेट एंड शिफ्ट ये आपका एडमिट कार्ड पे मेंशन होगा. डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज एंड आंसर कीज टू बी अनाउंस लेटर ऑन द वेबसाइट. वेबसाइट आपकी ये लिंक मेंशन है यहाँ पे, सो यू कैन गो एंड डाउनलोड एंड सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम दीज 2 लिंक्स गिवन बिलो. एप्लीकेशन फी क्या क्या है? जनरल और अनरिजर्व के लिए 1150, जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 600 एंड फॉर एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी एंड थर्ड जेंडर इज 325. ठीक है. सो कोई भी ज्यादा फॉर्म आपकी वो नहीं, अगर आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा तो उससे बहुत ज्यादा बड़ी आपकी जॉब लगेगी. ठीक है. सो व्हाट आर एम शुड बी? आर एम शुड बी फॉर जेआरएफ एंड एज यू ऑल नो द कट ऑफ द प्रीवियस जो दिसंबर 2022 का जो पेपर था उसकी कट ऑफ आप सब जानते हो. 156 कट ऑफ वॉज फॉर नेट एंड 200 समथिंग कट ऑफ वॉज फॉर नॉट 156, सॉरी इट्स 168. Yes, 168 somewhat cutoff was for net and 200 approx was cutoff for JRF. So we have to work accordingly. We have to assume that yahi cutoff will work for June 2023 as well. ठीक है. इसी cutoff को ध्यान में रख के we have to prepare for our exam. ठीक है. ये मत सोचना प्लीज कि दिसंबर का पेपर था तो ठीक है ये कट ऑफ होगी, अब थोड़ी हो सकती है. वी हैव टू कीप आवर ऑप्शंस ओपन. वी विल वर्क एज इफ हमारी यही कट ऑफ थी. ठीक है. तो ये तो आपका पब्लिक नोटिस था जो रिलीज हुआ है बाय द एनटीए. ओके. अब मेनी ऑफ यू, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन कि मैम इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट बता दो, क्या क्या पढ़ के जाएं, क्या क्या पढ़ना है, व्हाट शुड बी स्टडी, व्हाट शुड बी लीव. सो सी आई विल टेल यू व्हाट इज ऑल इंपॉर्टेंट, बट seeing the latest pattern or seeing the previous pattern of UGC or NTA, one thing for sure is कि कहीं से कुछ भी आ सकता है. ठीक है. सो आई सजेस्ट कि डू नॉट रेस्ट्रिक्ट योर सेल्फ कि यही पढ़ के जाना है हमें. ठीक है. अपने आप को रेस्ट्रिक्ट मत कर लो, अपने आप को मतलब बस कन्फाइन मत कर लो कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तो आई हैव टू स्टडी दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ओनली. नो, प्लीज डू नॉट डू दिस. Focus on each and everything because questions are being asked from each and every topic. कहीं से भी questions आ रहे हैं, so I'll suggest everyone कि please work on each and every topic. The topics that you have not covered, ठीक है, वो टॉपिक्स जो आपने कवर नहीं किए हैं, आई सजेस्ट कि प्लीज यू हैव टाइम दीज 15 डेज, मतलब 30th मई तक या 31st मई तक. आई सजेस्ट कि प्लीज गो थ्रू दोज टॉपिक्स. ठीक है. फिर आप 1 जून और साइड बाय साइड रिवीजन भी करते रहो. मतलब अब हमारा क्या टाइम है, अब वी हैव टू ओनली फोकस ऑन एनटी ओनली, नेट ओनली, है ना. अब हमारा फोकस सिर्फ नेट पे होना चाहिए. डू नॉट फोकस ऑन एनीथिंग एल्स. तो नेट पे फोकस है तो पूरा दिन नेट की प्रिपरेशन में ही दे दो आप. ठीक है. तो 30th मई तक इफ देयर इज एनी टॉपिक, जैसे बिग डेटा आपने नहीं कर रखा है, हडूप आपने नहीं कर रखा है, ठीक है, या कोकोमो नहीं कर रखा है, या कोई भी ऐसा टॉपिक, एजाइल मॉडल आपने नहीं कर रखा है, सो आई सजेस्ट एवरीवन कि प्लीज जस्ट फिनिश दोज टॉपिक्स फर्स्ट. ठीक है. बिकॉज यू नो दैट क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम दीज टॉपिक्स ओनली. HTML है, XML है, सभी पढ़ना है. ठीक है. These were the topics earlier that I used to tell कि ये इंपॉर्टेंट है, जैसे मैथमेटिकल लॉजिक हो गया, सेट एंड रिलेशन हो गया, इसमें से आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, प्रोबेबिलिटी है, बेस थ्योरम है, ग्रुप थ्योरी है, ग्राफ थ्योरी है. बेसिकली डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ऑप्टिमाइजेशन पूरा ही इंपॉर्टेंट है. इसमें से कुछ भी नहीं है जो आप छोड़ सकते हो. Each and every topic is important and each and every topic is marked as well. So discrete structure and optimization से आपको सब कुछ करना है. And अगर कर पाओ तो PERT CPM की थ्योरी भी पढ़ लेना. ठीक है. जो PERT और CPM लिखा है यहाँ पे, ये I'll just highlight this one. ये जो लिखा है PERT CPM, I'll suggest कि प्लीज इसकी थ्योरी भी पढ़ लेना थोड़ी बहुत, जिससे कि if in case they give you questions from the theory part from PERT CPM तो आपको पता हो कि what is PERT CPM at least.
ठीक है। सो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ऑप्टिमाइजेशन से कुछ नहीं छोड़ना है, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ऑप्टिमाइजेशन से पूरा तैयारी हमें पूरी पढ़नी है। ओके, नेक्स्ट वी हैव डिजिटल लॉजिक सर्किट्स एंड कंपोनेंट्स, डीएलडी बेसिकली। सो यहाँ पे डिजिटल कंप्यूटर, लॉजिक गेट्स, बुलियन अलजेब्रा, मैप सिंप्लीफिकेशंस, कॉम्बिनेशन सर्किट, फ्लिप फ्लॉप, सीक्वेंशियल सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर, रजिस्टर, काउंटर, मेमोरी यूनिट, ये पूरी ही मतलब सी अब क्या हो गया ना, मतलब लेटली व्हाट हैज हैपेंड इज कि वी यूज्ड टू थिंक कि अरे ठीक है ये तो बहुत इजी टॉपिक है। जैसे अगर हम बात करें इंटरप्ट की बात करें, लेट्स टॉक अबाउट इंटरप्ट, ठीक है। वी यूज्ड टू थिंक कि ओके दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, थ्योरी में से क्या पूछ सकते हैं। बट अगर आपने रियलाइज किया हो दैट क्वेश्चंस दे आर आस्किंग अ वेरी बेसिक क्वेश्चंस, बहुत बेसिक लेवल के होते हैं, बहुत हाई फाई या बहुत टफ नहीं होते क्वेश्चंस। लेकिन व्हाट वी डू इज वी डू नॉट स्टडी दोज टॉपिक्स। हम क्या करते हैं, हम मतलब अगर लेट्स टॉक अबाउट कि इफ देयर इज एनी टॉपिक, सपोज दिस इज अ टॉपिक, ठीक है, दिस इज द इजीएस्ट पार्ट, ये उसका इजी पार्ट है उस टॉपिक का, ठीक है, एंड दिस इज द टफ वन। सो जनरली व्हाट वी डू इज वी स्टडी दिस टफ पार्ट। ये टफ पार्ट तो हम कवर कर लेते हैं कि ओके इंटरप्ट में हमने डीएमए पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, बट जो बेसिक चीजें होती है ना वो हम छोड़ देते हैं। जो इजी पार्ट होता है वो वी लीव कि अरे ये तो आता ही है। बट जब क्वेश्चन उस इजी पार्ट से आता है ना देन द प्रॉब्लम अराइजेस, बिकॉज इजी तो हमें इजी लगा था तो हमसे छोड़ दिया कि तुम्हें पता है, बट थिंग इज कि हमें वो चीज नहीं पता है। सो आई सजेस्ट एवरीवन कि प्लीज सबसे पहले जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो या वट एवर यू आर रिवाइजिंग, रिवाइज इट थरली से मतलब कि बेसिक से रिवाइज करो, बिकॉज बेसिक पॉइंट से उसको रिवाइज करो आप, ठीक है। ये नहीं कि बीच से टॉपिक उठा लिया कि जैसे अब यहाँ पे अगर हम बात करें फ्लोटिंग पॉइंट की, तो फ्लोटिंग पॉइंट के न्यूमेरिकल्स उठा लिया आपने, न्यूमेरिकल करना शुरू कर दिया। नहीं, फ्लोटिंग पॉइंट को अगर आपने समझ लिया है बहुत अच्छे से तो उसकी थ्योरी देखो कि व्हाट इज द थ्योरी, पॉसिबल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस क्या हैं इस फ्लोटिंग पॉइंट के, वो पढ़ो। उन्हें स्टेटमेंट्स के फॉर्म में टॉपिक्स को पढ़ो। कोकोमो है, कोकोमो के सिर्फ न्यूमेरिकल्स विल नॉट हेल्प यू नाउ। कोकोमो का पूरा थ्योरी यू हैव टू स्टडी कि कोकोमो किस चीज के लिए यूज होती है, कोकोमो क्या है, कोकोमो क्यों आया, मतलब पूरा बेसिक नॉलेज आपको बहुत जरूरी है अब फॉर दिस पैटर्न ऑफ यूजीसी, ठीक है। रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज हो गया, बस एंड मेमोरी ट्रांसफर्स हो गया, अरिथमेटिक, लॉजिक, शिफ्ट ऑपरेशंस, ये जो टॉपिक है ना, ये वाला टॉपिक, इस टॉपिक से इतने थ्योरी क्वेश्चंस बन सकते हैं, इतने ज्यादा क्वेश्चंस बन सकते हैं थ्योरी के कि हमें आइडिया भी नहीं है सॉरी, हमें लगता है कि बेसिक चीजें तो हमें पता है, बट इसी टॉपिक से ऐसे बेसिक क्वेश्चंस निकलेंगे कि वी विल बी वेरी शॉक्ड कि ये कहाँ से पूछ रहे हैं। सो इसीलिए असेंबलर हो गया, प्रोग्राम लूप, सब रूटीन, आई सजेस्ट कि प्लीज जब अगर आप रिवाइज अपने रिवीजन आपने स्टार्ट कर दिया तो प्लीज ऐसे रिवाइज करो कि सारे टॉपिक्स को एटलीस्ट वंस आप उनकी थ्योरी को, जो अगर आपको इजी भी लग रहा है, आपको लग रहा है कि इजी भी है, तब भी यू हैव टू गो थ्रू दैट पार्ट। मल्टी प्रोसेसर्स की थ्योरी, बेसिक थ्योरी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मल्टी प्रोसेसर्स पता होने चाहिए, कैश कोहेरेंस पता होना चाहिए, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन पता होना चाहिए, बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट कि उसे पता होगा। Now think yourself as a computer science graduate जो एक टीचर बनने जा रहा है और यू कैन से मतलब एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहा है। सो व्हाट ऑल इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, द नॉलेज ऑफ दीज टॉपिक्स आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, इसलिए वो दे रहे एग्जाम, दे आर एक्सपेक्टिंग कि आपको ये पता होगा, डीएमए आपको पता होगा, मोड्स ऑफ ट्रांसफर आपको पता होगा, प्रायोरिटी इंटरप्ट आपको पता होगा, बिकॉज दीज आर द वेरी बेसिक टॉपिक्स जो एक कंप्यूटर ग्रेजुएट को बाय टिप्स पता होना चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर ग्राफिक्स अगेन सेम थिंग, कंप्यूटर ग्राफिक्स में भी जैसे हमने ये पढ़ा ट्रांसलेशन, स्केलिंग, जो क्वेश्चन आया था आपका दिसंबर वाले एग्जाम में, स्केलिंग वाला वेरी बेसिक क्वेश्चन, स्केलिंग और शेयरिंग उसमें इन्होंने मिक्स कर दिया था ना, मतलब दो ट्रांसफॉर्मेशंस को ऐड करते थे, स्केलिंग एंड शेयर, बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत बेसिक क्वेश्चन था, बट सिंस वी आर नॉट एबल टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, जो हमारी थिंकिंग कैपेसिटी है ना, हमें उसे इंक्रीज करना है, उसे इंप्रूव करना है। कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशंस दे रखे हैं हमें, हमने किए भी कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशंस, बट क्वेश्चन जैसे हमने देखा वी वर लाइक अरे ये तो हमें आता ही नहीं, बट हमने वो चीज पढ़ी हुई है, तो क्या करना है हमें, जो चीज हमने पढ़ी है उसको वी हैव टू अप्लाई ऑन द क्वेश्चंस। सिर्फ पढ़ के याद रखना नहीं है,
पढ़ के उसे अप्लाई करना है क्वेश्चंस पे कि ओके वी हैव टू यूज दिस मेथड, वी कैन डू दिस ऑन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। मतलब गिव इट अ टाइम एंड गिव इट अ ट्राई कि हम डिफरेंट चीजों को कैसे हैंडल कर सकते हैं। वो कैसे कर पाओगे आप? वो कर पाओगे आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करके क्वेश्चंस को, अलग अलग टाइप से, अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो कि क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जरूर करते हैं। यू विल नोटिस, आपने नोटिस किया होगा कि जितने द क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड इन द प्रीवियस एग्जाम्स वर नॉट मोस्टली न्यूमेरिकल, दे वर मोस्टली थ्योरी क्वेश्चंस। डेटाबेस से आप लोगों को पता है क्या पढ़ना है। डेटाबेस से डेटा माइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिग डेटा वाला चीज बहुत इंपॉर्टेंट, बिग डेटा भी इसमें मैंने ऐड नहीं किया है। बिग डेटा हो गया, नो एसक्यूएल हो गया। अब क्योंकि द क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम एनीवेयर, सो वी कैन नॉट लीव एनी पार्ट। तो बेसिक तो हमें हर चीज का पता होना चाहिए, ठीक है। सिस्टम, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो पहली आपकी यूनिट है, मतलब पहला जो सब टॉपिक है, मशीन असेंबली, हाई लेवल लैंग्वेज, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, लोडिंग, लिंकिंग, ये भी हमें पता होना चाहिए बिकॉज बेसिक है। बट बेसिक हम ज्यादा बेसिक में जाते नहीं, और बेसिक ही हमसे पूछा जा रहा है, ठीक। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी अगेन अजाइल से क्वेश्चन आया था, तो अजाइल आपको पता ही, जो फर्स्ट यूनिट है ना, हर फर्स्ट सब ये बुलेट्स हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इसमें आपका अजाइल आ गया, इसमें आपका फिर एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग हो गई, स्क्रम आ गया, ठीक है, वेब इंजीनियरिंग हो गई। मतलब ये दीज आर द टॉपिक्स दैट दे एक्सपेक्ट कि आपको पता होगा, सो उस हिसाब से यू हैव टू वर्क। डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, एवरीथिंग, कुछ भी ऐसा है नहीं जो आपको पता नहीं कि आपको क्या पढ़ना है। ये चीज, इसकी थ्योरी बहुत जरूरी है। कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी, पी क्लास प्रॉब्लम्स, एनपी कंप्लीटनेस, रिड्यूसिबिलिटी, ये चीजें हैं जो ज्यादा जरूरी हैं थोड़ी, क्योंकि वी जस्ट इग्नोर दीज क्वेश्चंस। हमें इग्नोर नहीं करने क्वेश्चंस को, हमें उन्हें अच्छे से हैंडल करना है, ठीक है। एविल ट्री पे क्वेश्चन आया था, तो एविल ट्री भी हमें पता होना चाहिए। एविल ट्री कैसा है? एविल ट्री पे सिलेबस में इसलिए क्वेश्चन आया था, ठीक है, तो पता होना चाहिए एविल ट्री भी। थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिशन कंपाइलर से आई थिंक अब जो हमें पढ़ना है वो क्या हमें पता होना चाहिए, पीडीए, ट्यूरिंग मशीन, इनकी वर्किंग, बिकॉज नाउ दे आर आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम इट्स वर्किंग, इनकी वर्किंग पे क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। जो क्वेश्चन आया था आपका ट्यूरिंग मशीन वाला क्वेश्चन जो था कि देवर एक्सपेक्टिंग कि आप उस टेबल से, उस ट्रांजिशन टेबल से यू विल मेक अ होल डायग्राम। तो उसके लिए क्या पता चाहिए? उसके लिए यू हैव टू नो कि व्हाट इज द ट्यूरिंग मशीन, हाउ ट्यूरिंग मशीन वर्क्स, तो वो पता होना बहुत जरूरी। सो इसीलिए ट्यूरिंग मशीन, पुश डाउन ऑटोमेटा, फाइनाइट ऑटोमेटा हर कोई पढ़ता है, डीएफए, एनएफए सब पढ़ते हैं। बट पीडीए और ट्यूरिंग मशीन जो है वो मोस्टली स्टूडेंट छोड़ देते हैं कि अरे ये तो नहीं पूछा जाएगा, ये तो नहीं। बट लेटली आप नोटिस करोगे कि पीडीए की वर्किंग भी क्वेश्चन में आई है और ट्यूरिंग मशीन की वर्किंग भी क्वेश्चन में आई है। सो ये भी पढ़ना है। कंप्यूटर नेटवर्क से तो कुछ है भी नहीं बताने लायक जो मैं आपको बताऊं। क्लाउड कंप्यूटिंग इंपॉर्टेंट है, आईओटी इंपॉर्टेंट है। उससे नेक्स्ट आपको मोबाइल टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है, तो कुछ भी नहीं छोड़ना है। अब जो हम पहले छोड़ देते थे ना कि अरे इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, नो, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट नाउ। अब ये तो बात होगी सिलेबस की, ठीक है, क्या सिलेबस में से हमें क्या पढ़ना है, मतलब अपने अपने व्हाट यू कैन से अपने कैलिबर के अकॉर्डिंग स्टडी, अकॉर्डिंग टू योर कैलिबर, बट यू हैव टू पुश योर लिमिट्स, ठीक है। मतलब आपने डीबीएमएस पढ़ा, नाउ सपोज आपने डीबीएमएस पढ़ के रिवाइज कर लिया, बट आपने लगा कि बिग डेटा नहीं हो रहा है, बिग डेटा मुझसे नहीं होगा, यू हैव टू पुश योरसेल्फ कि नहीं, बिग डेटा में हडूप तो पढ़ के ही रहूंगा, या हडूप तो मैं करके ही रहूंगी, हडूप तो मुझे पता ही होना चाहिए। एंड नॉट जस्ट बिकॉज यू आर गिविंग दिस एग्जाम, बट जनरली जनरल ऑल्सो, सिंस आप एक कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो, आपको पता होना चाहिए कि बिग डेटा क्या है, हडूप क्या है, बेसिक लेमैन टर्म्स के लिए भी पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या पढ़ना है, सब क्या हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो वी हैव टू स्टडी द थ्योरी पार्ट, ठीक है। कोई भी टॉपिक आप लो, मतलब अगर हम सपोज लेट्स टॉक अबाउट, हम क्या टॉपिक लें, पीएनपी या कॉम्प्लेक्सिटी वाली टॉपिक लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू स्टडी द थ्योरी, ठीक है।
सबसे पहले क्या पढ़ना है हमें, सबसे पहले हमें पढ़ना है उसका थ्योरी कि व्हाट इज पी क्लास, व्हाट इज एनपी क्लास, व्हाट इज एनपी हार्ड, व्हाट इज एनपी कंप्लीट, वो हाउ आर दे कनेक्टेड टू ईच अदर, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस थिंग, हाउ आई कैन रिड्यूस देम, व्हाट इज रिड्यूसिबल टू पॉलिनॉमियल टाइम। ये सब चीजें जो पूरी थ्योरी है। कोकोमो मॉडल की बात करो तो व्हाट इज द कोकोमो मॉडल, हाउ इट वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड व्हाई इट इज इंट्रोड्यूस्ड एंड व्हाट ऑल शुड बी देयर, बेसिक कोकोमो मॉडल क्या है, ऑर्गेनिक क्या है, सेमी डिटैच के जो भी टॉपिक्स हैं कोकोमो मॉडल के, उसकी थ्योरी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद द कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, आपने थ्योरी पढ़ ली। अब जो कंसेप्चुअल मतलब कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो होते हैं वो सर्च करो उस टॉपिक से रिलेटेड कि अच्छा पीएनपी क्लास हमने पढ़ लिया, अब इससे क्या क्या क्वेश्चंस हमारे आ सकते हैं। तो वो सारे क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर्स के आए हैं उन्हें सॉल्व करने का ट्राई करो। तो वो कैसे करोगे, सबसे पहले थ्योरी, बिकॉज जो आपके स्टेटमेंट्स आते हैं ना, असर्शन रीजन हो गया या स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, वो सारे ही क्वेश्चन इसी बेसिस पे होते हैं। वो सारे क्वेश्चन आपके थ्योरी के बेस पे होते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, बट दे एक्सपेक्ट, द एग्जामिनर एक्सपेक्ट कि आपको बेसिक क्वेश्चंस पता होंगे, भले वो आपको थोड़ी लैंग्वेज ट्विस्ट कर दे, वेदर द लैंग्वेज इज ट्विस्टेड और नॉट, यू शुड नो हाउ टू अप्रोच दैट क्वेश्चन। एंड लास्ट में आपको उसके न्यूमेरिकल्स ट्राई करने से। कोकोमो मॉडल की बात है तो कोकोमो की पहले हमने पूरी थ्योरी पढ़ ली, वी हैव स्टडीड द एंटायर थ्योरी ऑफ कोकोमो मॉडल। उसके बाद वी विल मूव टू द थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ऑफ कोकोमो मॉडल, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे कोकोमो मॉडल के, वो पढ़ेंगे। एंड उसके बाद वी विल मूव टू द न्यूमेरिकल्स। अगर हम एक टॉपिक, इफ आई एम रेफरिंग टू वन टॉपिक, जैसे अगर हम ऑप्टिमाइजेशन की बात करें, ऑप्टिमाइज एलपीपी, तो एलपीपी का भी पहले पूरी थ्योरी पढ़ लो कि एलपीपी की थ्योरी क्या है, व्हाट इज द थ्योरी बिहाइंड एलपीपी, बेसिकली लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, कि फीजिबल रीजन क्या होता है, अनबाउंडेड रीजन क्या होता है, क्या क्या केस स्टडी बनती है अगर फीजिबल रीजन नहीं है। तो अगर ये आपका ऐसे डायग्राम है तो ये आपका रीजन कौन सा बना, ये आपका रीजन कौन सा हुआ, ये लाइन किस चीज की है, ये लाइन किस चीज, मतलब एवरी थ्योरी दैट इज देयर। फिर उस थ्योरी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस दे कैन आस्क यू रिलेटेड टू दिस थ्योरेटिकल पार्ट, एंड देन वी विल स्विच टू दी न्यूमेरिकल्स। तो दिस शुड बी योर फ्लो। इस फ्लो से आपको यू हैव टू वर्क कि पहले थ्योरी से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, फिर कंसेप्चुअल क्वेश्चन से न्यूमेरिकल्स, बिकॉज लेटली न्यूमेरिकल्स दे आर गिविंग, आई एम नॉट थिंकिंग वो देंगे, बट उनका लेस फोकस है न्यूमेरिकल्स पे। ठीक है, ये तो हो गई आपकी स्ट्रेटेजी, क्या होना चाहिए फॉर अवर टॉपिक। आपको करना कैसे है, टेस्ट सीरीज लो। ठीक है, टेस्ट सीरीज जितनी भी टेस्ट सीरीज पॉसिबल है, जो भी टेस्ट सीरीज हैं वो टेस्ट सीरीज आप देखो। अभी सर ने ग्रुप पे डाला था, अगर आपने देखा हो टेलीग्राम ग्रुप पे, सर ने टेस्ट सीरीज डाली थी कि मेगा टेस्ट सीरीज है, मिनी टेस्ट सीरीज है, मॉक सीरीज है, तो वो दो। अभी आपके पास टाइम है टिल 31st May, यू हैव टू गिव टेस्ट सीरीज। आई विल सजेस्ट एवरीवन कि 31st May तक टेस्ट सीरीज दो, एवरीवन शुड गिव टेस्ट सीरीज, बिकॉज उससे क्या होगा, यू विल बी इंट्रोड्यूस टू न्यू क्वेश्चंस, यू विल बी इंट्रोड्यूस टू न्यू कंसेप्ट्स, यू विल बी इंट्रोड्यूस टू न्यू टॉपिक्स, जो हो सकता है कुछ टॉपिक्स आपने छोड़ दियो, यू विल बी इंट्रोड्यूस टू दोज। ठीक है, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करने, क्या प्रैक्टिस करने हैं, पीवाईक्यूज, सबसे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने हैं गेट के। गेट के पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब पीवाईक्यू तो बहुत सारे हैं, कहां से प्रैक्टिस, कौन सी ईयर से, ट्राई करो ईयर 2003 से प्रैक्टिस करने, टॉपिक वाइज कर लो। गीक्स फॉर गीक्स है आपका, गीक्स फॉर गीक्स पे आप ले सकते हो। गीक्स फॉर गीक्स पे यू कैन गो एंड यू कैन वर्क ऑन द प्रैक्टिस क्वेश्चंस। जो गीक्स फॉर गीक्स से प्रैक्टिस क्वेश्चंस आते हैं आपके, आप वो ले सकते हो, आप उनको ट्राई कर सकते हो टॉपिक वाइज। ठीक है, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ट्राई पीवाईक्यूज ऑफ प्रैक्टिस, यू हैव टू प्रैक्टिस पीवाईक्यूज ऑफ नेट, एंड यू हैव टू प्रैक्टिस पीवाईक्यूज ऑफ गेट। तो ये बेसिक चीजें होंगी, पहले टेस्ट सीरीज देनी है और फिर पीवाईक्यू प्रैक्टिस करनी है। पीवाईक्यूज में यू विल हैव थ्योरी क्वेश्चंस आल्सो, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आल्सो एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आल्सो। टॉपिक्स को रिवाइज करना है, कैसे रिवाइज करना है, टॉपिक्स को रिवाइज करना है ऐसे, थ्योरी रिवाइज करनी है उनकी, थ्योरी को पढ़ना है उनके पहले, फिर उसको रिवाइज करना है, फिर उसके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस देखने हैं और फिर उसके न्यूमेरिकल्स देखने हैं। ठीक, देन व्हाट यू हैव टू डू, नोट टफ टॉपिक्स। जो टफ टॉपिक्स है, मतलब जैसे कि सपोज हमने पढ़ लिया एंड वी लेफ्ट बिग डेटा,
बिग डेटा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम वो छोड़ देते हैं, HTML की बात कर लो, ठीक है। HTML का टॉपिक है, वी हैव कंप्लीटेड आवर प्रोग्रामिंग एंड वी हैव नॉट टच्ड HTML. सो व्हेन वी विल स्टार्ट HTML, नो, अगर हम अब स्टार्ट करते हैं, इट विल बी अ न्यू टॉपिक फॉर अस, इट विल बी टफ टॉपिक फॉर अस. तो हमें क्या करना है, वी हैव टू नोट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ HTML. पूरी HTML नहीं पढ़नी है, बस जो सिलेबस में मेंशन है वो, ठीक है. द टफ टॉपिक्स वी हैव टू मेंशन, वी हैव टू मेक नोट्स ऑफ दोस टफ टॉपिक्स एंड वी हैव टू रिवाइज दोस टॉपिक्स रेगुलरली. तभी क्या होगा, दीज थिंग्स विल सिट इन आवर माइंड्स, ठीक है. सो दिस विल बी योर अप्रोच कि आपको क्या करना है. टेस्ट सीरीज देनी ही देनी है 31 मई तक हर हाल में. प्रैक्टिस करने PYQs नेट और गेट के टॉपिक्स को रिवाइज करना है, टफ टॉपिक्स को नोट करना है. अगर सम ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिसंबर एग्जाम, है ना, तो तब भी व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू गिव जून एग्जाम सो दैट यू विल गेट एन आइडिया. आप अपनी प्रिपरेशन वैसी रखो जो आप दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो. जस्ट कीप ऑन विद योर प्रिपरेशन फॉर दिसंबर एग्जाम, बट गिव जून एग्जाम एज वेल सो दैट आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, एग्जाम दिसंबर को हमें कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है. ये तो हो गई वाली बात. अब ग्रुप पे आफ्टर दिस वीडियो विल बी लॉन्च्ड, ठीक है, अपलोडेड, सॉरी नॉट लॉन्च, अपलोडेड ऑन यूट्यूब. उसके बाद ग्रुप पे जो टेलीग्राम ग्रुप है, दैट इज योर t.me/netdigimento, द सेम ग्रुप, वही ग्रुप है, बस लिंक थोड़ा चेंज हो गया, ठीक है. इस ग्रुप पे आई विल बी रनिंग अ पोल, ठीक है. एक पोल रन करूंगी मैं, अभी नहीं, जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगी उसके बाद. पोल, I'll be running a poll of let's say 3 topics, ठीक है. या फिर what I can do is, एक तो मैं आपको तरीका मतलब बता रही हूँ कि क्या हो सकता है. या तो I can run a poll of 5 topics let's say, ठीक है, कि what all topics that I feel are important and we generally ignore those topics. तो I will try to find questions from those topics, ठीक है, and based on your suggestions or based on your answers we will be covering those topics. या फिर what I can do is, instead of that poll, after watching this video you have to give your reviews on the Telegram group, ठीक है. ग्रुप पे रिव्यू देने हैं आपको. क्या रिव्यूज देने हैं, यू हैव टू गिव योर रिव्यूज, और यू कैन से गिव योर सजेशंस, बेसिकली नॉट रिव्यूज एग्जैक्टली. यू हैव टू गिव योर सजेशंस कि व्हाट टॉपिक्स यू वांट मी टू कवर ऑन अ डेली बेसिस, ठीक है. आप मुझसे क्या टॉपिक्स एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आई शुड डू, मतलब फिर मैं क्या कवर करूंगी. आई विल बी कवरिंग नेट PYQs, I'll be covering gate PYQs of that particular topic and other questions and some important points to remember, ठीक है. सो अब या तो मतलब आप लोग अपने सजेशन देना स्टार्ट कर देना ग्रुप पे, ठीक है. वंस यू विल वॉच दिस वीडियो, वंस दिस वीडियो विल बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब, आप इस वीडियो को देख लोगे. उसके बाद आपको जो टेलीग्राम ग्रुप है ये वाला, इस टेलीग्राम ग्रुप पे आपको अपने सजेशंस मुझसे शेयर करने हैं कि मैम, जैसे मान लो कोई आप में से कॉम्प्लेक्सिटी क्लास पढ़ना चाहते हैं, PNP, तो आपको अपने सजेशन देने कि मैम आई वांट टू स्टडी दिस टॉपिक. फिर अगर कोई और स्टूडेंट भी उसी टॉपिक को पढ़ना चाहता है तो दैट पर्सन विल से +1, ऐसे करके. या फिर मैं पोल रन कर दूंगी. तो जो भी बेटर, जो भी आपको सही लगे, आप ग्रुप पे मुझे बता सकते हो, इसी टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है. सो इफ यू हैव नॉट ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप, प्लीज डू ज्वाइन इट एंड वेरी सून वी विल बी स्टार्टिंग, ठीक है. बहुत जल्द फिर हम इस चीज को स्टार्ट करेंगे. अभी आज we still have time, so we will, don't worry, I'll definitely help you out for June 2023 एग्जाम. बट आपको क्या करना है, अब रेगुलर रहना है. आपको मैं रेगुलर आऊँ ना आऊँ, आपको रेगुलर पढ़ाई करनी है, आपको रेगुलर डाउट्स अपलोड करने हैं ग्रुप पे, ठीक है. एंड आई विल मेक श्योर टू हेल्प यू द बेस्ट इन अ बेस्ट पॉसिबल वे आई कैन, ठीक है. सो दैट्स इट फॉर दिस. अगर स्ट्रैटेजी में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी टेंशन है, या कोई भी वो, इफ यू फील एनी प्रॉब्लम, डू नॉट बी डिसहार्टेंड, यू कैन जस्ट मैसेज मी एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट. ओके, थैंक यू एवरीवन.